Our today's topic is scope of psychology. As psychology is a scientific study of behavior in relation to the environment, and behavior has its has its overt and covert type also, and how it influences the others fields, that is the scope of the psychology. Means what are the areas of interest, what are the subfields where psychology is implying its importance. The field of psychology can be understood by various subfields of psychology, making an attempt in meeting the goals of psychology. What are these goals of psychology? To understand the behavior. And since we have to understand the behavior of an individual means plants, animals, and the here when we talk of the individual, that is a human being, but we are studying the psychology of the plants, the animals also, and plant psychology is still evolving. The field of psychology will be applied where individuals will be there. Since individuals are in every field, hence psychology can have scope in every field. So, in order to understand the scope means the boundaries, the areas where it has emerged. We have to understand its subfields. There are numerous branches of psychology. It's very difficult to study all at one time. In order to taking into consideration your curriculum, we are discussing here some of the branches. One is the clinical psychology. Clinical psychology, as you have heard the name of the clinicians or the clinical psychologists, those who deals with the diagnosis and treatment of abnormal behavior. Behavior can be normal, behavior can be abnormal. Abnormal means away from the normal. When the person is not showing the proper behavior, that is the abnormal behavior. Though what clinical psychology studies, first is the diagnose, कि उसको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि इस इंडिविजुअल को कौन सी प्रॉब्लम है. तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट्स आर देयर, tests are applied, and by looking at the results we can see there are number of methods also. Observation method is also there. So by applying that we diagnose the problem of the individual, and then we apply the treatment. For becoming a clinical psychologist, you have to do a extra diploma or degree in that, because clinical psychology requires practical training. Only MA in psychology or BA in psychology is not sufficient. A specialization is also required for there. Next comes the social psychology. As the name indicates, social means society. अब हम यहाँ भी हमने इंडिविजुअल्स को स्टडी करना है, तो सोसाइटी के लोगों का हमारे बिहेवियर पे क्या इन्फ्लुएंस होता है. कई बार कुछ लोगों की वजह से हम परेशान हो जाते हैं और कुछ लोगों की वजह से हम खुश हो जाते हैं. कुछ लोग हमारे मॉरल को हाई करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे मोटिवेशन लेवल को लो कर देते हैं. तो हाउ द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स इज इन्फ्लुएंसिंग अस, दैट इज द सोशल साइकोलॉजी. It uses scientific methods to understand and explain how thoughts, feelings, and behavior of individuals are influenced by the actual, imagined, or implied presence of other human beings. अब यहाँ पे हमने ये है कि उसकी एक्चुअल प्रेजेंस, क्या वो सामने आपके प्रेजेंट है. इमेजिन्ड, अगर कोई इंडिविजुअल जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हो वो आपके सामने नहीं है, लेकिन उनके थॉट से ही आपके अंदर नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है. दैट इज द इमेजिन्ड और इम्प्लाइड. ओके, तो सोशल साइकोलॉजी मीन्स हाउ आवर बिहेवियर, आवर थॉट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर पर्सन्स. फोरेंसिक साइकोलॉजी, एज द नेम इज इंडिकेटिंग, कि इट इन्वेस्टिगेट्स लीगल इश्यूज एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स इन्वॉल्व इन क्रिमिनल बिहेवियर. क्रिमिनल्स मीन्स जो इंडिविजुअल्स क्राइम करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं क्राइम्स में, दे आर द क्रिमिनल्स. अब उनका बिहेवियर भी एबनॉर्मल ही है, लेकिन उनको कैसे स्टडी करना है कि वो उस क्राइम तक कैसे पहुँचे, व्हाट हैज़ लेड टू द क्राइम, वो इस फील्ड में कैसे आए, और अब उनको हम कैसे उनको इस क्राइम की दुनिया से बाहर निकाल सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो द जॉब ऑफ द साइकोलॉजिस्ट. बट हियर फोरेंसिक्स जो साइकोलॉजिस्ट होती हैं, दैट डज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द legal issues and psychological variables that are involved in the criminal behavior. अब जैसे आप CID, सावधान इंडिया, इसमें आप देखते हो कि किस तरह से जो क्रिमिनल होता है वो अपने क्राइम को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन
जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो उसके छोटे छोटे उसके बिहेवियर को, उसकी घबराहट को, या उसके जो वर्ड्स वो मिस करता है, या वो जो कुछ अलग करने की कोशिश करता है, तो इस तरह के उसके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करके वो उनके जो है वो उसके लीगल इश्यूज़ को और साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और एक क्रिमिनल को उसके लिए सबूत इकट्ठा कर लेते हैं उसके खुद के बिहेवियर को स्टडी करके। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है कि स्पोर्ट्स मीन्स इट इज़ अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। अब जब भी टीम कोई खेलती है तो उसके साथ एक स्पोर्ट्स पर्सन के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट ज़रूर होते हैं। हेयर ऑल्सो यू हैव अ स्कोप इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। अब उन साइकोलॉजिस्ट का क्या काम है कि स्पोर्ट्स पर्सन के मॉरल को हाई रखना, उसकी सेल्फ एस्टीम को हाई रखना, कहीं उसके अंदर नेगेटिविटी ना आ जाए, वो अपने आप को इन्फीरियर ना सोचना शुरू कर दे और जिसकी वजह से उसका जो बूस्टअप है वो कम हो जाए और उसकी परफॉर्मेंस लोअर हो जाए। तो उसके उस मॉरल को हमेशा बूस्ट करते रहना, सेल्फ एस्टीम को हाई करते रहना, उसका ये हमारे उस टाइम पे साइकोलॉजिस्ट की ड्यूटी है। इसके अलावा जो वहाँ पे क्राउड है आसपास, उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, बिकॉज हमने अभी सोशल साइकोलॉजी में देखा कि लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है, तो उन लोगों की प्रेजेंस की वजह से कहीं परफॉर्मेंस लो ना हो जाए, तो इसलिए अलग अलग टेक्निक्स लगा के psychologist that helps a sports person in achieving its aim. It deals with the performance of sport persons such as low stress can affect sport performance, moral boosting, self-esteem and impact of crowd behavior. Cognitive psychology. Basically cognitive का मतलब होता है cognition, mental processes, thinking, reasoning, problem solving, ये सारा cognitive psychology के अंदर है जो हमें दिखता नहीं है। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत हाई है या आप बिल्कुल ज़ीरो हो, आपकी रीजनिंग बड़ी अच्छी है या आप बहुत कम हो, तो देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ हैं, तो वी हैव टू स्टडी दैट। इट फोकसेस ऑन इंटरनल स्टेट सच एज मोटिवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग एंड अटेंशन, एंड ऑल्सो देयर आर अदर मैनी अदर प्रोसेसेस ऑल्सो दैट आर रिलेटेड विद द कॉग्निटिव। Developmental, yes, development starts from the childhood and it goes up to the adulthood. अब ऐसा नहीं है कि वहाँ stop हो जाती है. Development is basically a lifelong process, but in the old age it starts declining. ये lower में आना शुरू हो जाती है. From childhood to adulthood it is on the upper side of the graph, but in the old age it is on the lower side of the graph. अब human जो growth है फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, परसेप्चुअल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस सारे को जो स्टडी करने का काम है दैट इज ऑफ द डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। बड़ी सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं द मेन कॉज ऑफ दैट इज द नॉट प्रॉपर डेवलपमेंट एट द चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स की वजह से जो है उस बड़े सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो लेट ईयर्स में आके शो होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। और हमें पता चलता है कि बचपन में इसके साथ ये हुआ था, इसकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं थी। इवन फ्रॉइड ने हर एक स्टेज को स्टडी किया है कि उस स्टेज में अगर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती है तो लेटरहुड में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो दैट इज़ द जॉब ऑफ द डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट टू स्टडी द प्रॉपर डेवलपमेंट एट ईच स्टेज ऑफ लाइफ। एजुकेशनल साइकोलॉजी and school psychology. Educational psychology, it deals with the education where people of all the ages learn, not only children but जैसे in the old age also, अब प्रौढ़ शिक्षा भी है। Educational psychologists primarily help develop instructional methods and materials used to train people in both educational and work settings. अब different types of instruction, methods of instruction are there. There was a time when only book reading was done. Now there are lecture methods, demonstration methods. Now shifting here from audio-visual aids, अब online teaching learning process जो है वो start हो गया है। तो it is a job of the educational psychologist to provide best instructional materials to achieve the aims of the education. अब वर्क सेटिंग्स को कैसे ठीक रखा जाए ताकि बच्चा जो है वो अच्छी तरह से लर्न कर सके।
they are also concerned with the research on issues of relevance for educational, counseling and learning problems. अब educational psychologists, they are always engaged in the process of research for evolving new methods of educational, counseling and learning problems. जो भी लर्निंग में प्रॉब्लम्स आती हैं कि उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे उसको ठीक हो कर सकते हैं, और हाउ न्यू मेथड्स अपना के हम बच्चों को ज़्यादा अच्छा जो मैटर है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. अब रिलेटेड फील्ड जो स्कूल साइकोलॉजी है, हियर इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू ऑल पीपल ऑफ ऑल द एजेस बट टू स्कूल ओनली. जो बच्चे स्कूल तक जाते हैं, it focuses on designing programs that promote intellectual, social and emotional development of the children, including those with the special needs. अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल मेथड्स के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास स्पेशल चिल्ड्रन भी हैं. स्पेशल चिल्ड्रन आर दोज चिल्ड्रन हु आर नॉट नॉर्मल बट दे हैव सम डेफिशिएंसीज इन देयर. अब कोई बच्चा अगर हार्ड ऑफ हियरिंग है, सुनाई नहीं देता है, विजन नहीं है उसकी, अब वो चल नहीं सकता है, लोकोमोटर प्रॉब्लम्स हैं उसको, इसके साथ साथ उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुई है, आईक्यू उसका लो है, तो दीज आर द चिल्ड्रन हु कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. एंड इनके लिए हमें जो एजुकेशन है दैट शुड बी ऑफ समवट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल चिल्ड्रन. अब उसके लिए कैसे उनको पढ़ाया जाए, कैसे उनको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, किस तरह की इंस्ट्रक्शंस दी जाएं ताकि उनको अंडरस्टैंड हो जाए, दैट इज़ द जॉब ऑफ द स्कूल साइकोलॉजिस्ट. दे ट्राई टू अप्लाई नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इन ए स्कूल सेटिंग. अब ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया आ जाता है स्कूल तक ही, जबकि एजुकेशनल जो थे वो पूरे एजुकेशन ऑफ ऑल द एजेस, इवन यूनिवर्सिटी लेवल ऑल्सो, आफ्टर दैट ऑल्सो they apply their services. Biological psychology is very very important क्योंकि behavior जो है that is the result of heredity, genes and environment. अब genes जो है that is biological. बड़ी सारी जो हमारी psychological problems होती हैं उसका कारण जो होता है वो biological ही होता है. हमारी बॉडी के साथ हमारी जीन्स जेनेटिक होता है, इवन हमारा नर्वस सिस्टम जो है प्रॉपर नहीं वर्क कर रहा है उसकी वजह से है, वीक इम्यून सिस्टम है उसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं. सम पीपल आर वेरी सेंसिटिव, सम गेट डिप्रेस्ड वेरी इजीली, तो देयर कैन बी बायोलॉजिकल रीजंस फॉर ऑल्सो. अब हम बोलते हैं नहीं ये तो प्रॉब्लम जो है ये इसकी खानदानी प्रॉब्लम है, इट मीन्स दैट इज़ कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स. Biological psychology focuses on the relationship between behavior and the physical system. That includes the brain and the rest of the nervous system, the immune system and the genetics. अब इसमें ब्रेन के जैसे आप पढ़ते हो, देयर आर हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, इसके दो सब पार्ट्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज़. अब जो लेफ्टी चाइल्ड है तो दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम विद द हैंड और द हैबिट, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द ब्रेन. अब बच्चा जो है वो पेंसिल को होल्ड नहीं कर पा रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है, तो इट मीन्स देयर इज समथिंग विद द नर्वस सिस्टम. अब बच्चे को याद नहीं रह रहा है तो उसको मतलब वो भूल जाता है, तो देयर कैन बी ए प्रॉब्लम विद द नर्वस सिस्टम. तो इट मीन्स वट एवर इज शोन इन द बिहेवियर, द चाइल्ड इज नॉट एबल टू स्टैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो दैट इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लम, कैन बी द बायोलॉजिकल. तो हमने इसीलिए इसको लिंक करना बड़ा ज़रूरी होता है. इसलिए जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं दे ऑफन कोलैबोरेट विद द न्यूरो साइंटिस्ट, जोलॉजिस्ट एंड द एंथ्रोपोलॉजिस्ट. हेल्थ साइकोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. It focuses on the role of psychological factors, for example stress, anxiety in the development, prevention and treatment of illness. कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका कारण जो है आपकी ये जो प्रॉब्लम्स है साइकोलॉजिकल जो आपके फैक्टर्स है ये भी हो सकता है. जैसे आजकल इट हैज़ बिन सेड दैट कि योर डायबिटीज़, थायराइड प्रॉब्लम्स दे आर बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑल्सो. बीपी, स्ट्रेस की वजह से बीपी शूट कर जाता है. अब डिप्रेशन की वजह से आगे बड़ी सारी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं. तो ये हेल्थ साइकोलॉजी दैट फोकसेस ऑन द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. कौन स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, नेगेटिव थॉट्स हैं, दीज आर द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. तो इनका जो रोल है वो इलनेस में, बीमारी में क्या है और हम उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. तो मीन्स कि अगर आपको बीपी को कंट्रोल करना है तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना पड़ेगा.
Areas of interest for a health psychologist are stress and coping, the relationship between psychological factors and the health, patient doctor relationship and ways of promoting health enhancing factors. अब ये हेल्थ साइकोलॉजिस्ट तो किस किस एरियाज़ के साथ डील करते हैं अपने फ्रेम के अंडर, तो स्ट्रेस और कोपिंग, उसकी कोपिंग कैसे हुई। अगर आप नॉर्मल सिचुएशंस में भी स्ट्रेस फील करना शुरू कर जाते हो तो दैट यू रिक्वायर ए कोपिंग। स्ट्रेस इज a stress, now we every day we feel stress, so it doesn't mean कि we can escape from that, we have to just cope up with that। अब जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं स्ट्रेस एंजाइटी, इनके साथ और हेल्थ के साथ क्या रिलेशन है, और इसको हम अगर हम इन्हीं को कोप कर लेंगे तो हमारी हेल्थ इंप्रूव करेगी। वीक इम्यून सिस्टम, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका डॉक्टर अच्छा है तो आपकी आधी प्रॉब्लम वैसे ही ख़त्म हो जाती है, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि जब पेशेंट डॉक्टर के साथ अच्छी तरह से बात कर लेता है तो उसको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम डॉक्टर ने सुन ली, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। दैट इज़ ए बिलीफ सिस्टम। अब बिलीफ सिस्टम जो है इसका बहुत बड़ा पार्ट होता है रिकवरी में, क्योंकि अगर एक इंसान को अगर सिंपल ग्लूकोज का इंजेक्शन ही दे दिया जाए और उसको ये बोला जाए कि ये दवाई है जिससे तुम ठीक हो जाओगे, तो कई बार वही काम करना शुरू कर जाता है, वो अपने बिलीव्स को इन्हांस करता है और वो रिकवर कर जाता है। तो रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें किस तरह से हेल्थ एनहांसिंग फैक्टर्स को प्रमोट करना है सो दैट ये प्रॉब्लम अराइज ही ना हो। क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी, कल्चर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है बिहेवियर में। जैसे हमने हेरिडिटी एनवायरनमेंट कहा, तो कल्चर का भी एक रोल होता है। फॉर एग्जांपल एक ऐसा कल्चर जहाँ पे फीमेल्स को जो है वो बिल्कुल पढ़ने नहीं दिया जाता, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो वहाँ पे वो गर्ल्स जो है उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। जब डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी तो दैट विल लीड टू द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन देम। And it cross cultural and cultural psychology examines the role of culture in understanding behavior, thought and emotions. It assumes that human behavior is not only a reflection of human biological potential but also a product of culture. Therefore behavior should be studied in its socio-cultural context. हाँ, मीन्स कि हमने बिहेवियर को स्टडी करना है, बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए कल्चर को समझना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज कल्चर प्रोवाइड्स ए इन्वायरमेंट फॉर यू। तो अगर वही कल्चर आपको जो है वो डेवलप नहीं होने दे रहा है, जब आपको जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दे रहा है, तो जब तक हम उसको स्टडी नहीं करेंगे तो उसकी इन्फ्लुएंस को हम कम नहीं कर पाएंगे। तो दीज वर द सम ऑफ द फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू योर करिकुलम, बट देयर आर इन न्यूमरस फील्ड्स. Other emerging branches of psychology are the interdisciplinary focus on research and application of psychology has led to the emergence of varied areas like aviation psychology, space psychology, military psychology, forensic psychology, rural psychology, engineering psychology, managerial psychology, community psychology, psychology of women, and many more. Why many more? Because psychology studies the behavior of the individual. तो इंडिविजुअल जिस जिस फील्ड में होंगे वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ फील्ड्स जो है वो इवॉल्व हो चुकी हैं और कुछ आने वाले टाइम में इवॉल्व होंगी। Hence psychology is very very important. It has a wide area, wide scope, and it is a need of the hour. और जहाँ पे भी ये नहीं है वहाँ पर इसको लाने की बहुत बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।